Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I have been very inactive and I'm well aware of that fact. The last video that I've posted, I'm gonna add a thumbnail of the video over here. It's my birthday vlog. My birthday is in January and it's November. So you can imagine it's already probably close to a year of me not recording YouTube videos, and there is no specific reason of me not being active or not trying to record videos. It is just the fact that I never force myself to make content. I only make content when I genuinely feel like picking up the camera and I'm ready to go with it and I have some content pieces ready with me, because I can't force creativity out of me and I don't want to do that because it doesn't look authentic on the camera itself. आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा if it's not authentic. I can understand I should stop doing that. I should have a schedule. I should record weekly content. I promise you'll see more of me in 2026. This video is titled 23 Lessons I've Learned Till 23. I'm gonna turn 24 in January 2026, which is just 2 months away. So I should have just recorded a 24 lessons wala video. But anyway, you know how I am. The very first lesson that I want to talk about is you can't make someone love you by giving them more of what they already don't appreciate. दिस इज फॉर पीपल जो अपनी पूरी जिंदगी भर पीपल प्लीजिंग करते आए हैं, जो बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बाकी लोग उस प्यार को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. दे डोंट इवन रियलाइज बट दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, दे टेक योर लव फॉर ग्रांटेड. इफ दे आर डूइंग इट अनइंटेंशनली, इट्स ओके. आप अपनी एनर्जी उन लोगों में एक ऐसे लिमिट तक ही डाल सकते हो जब तक वो अप्रिशिएट करे उस एनर्जी को या उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करे. आप डीप कॉन्वर्जेशंस किसी ऐसे इंसान के साथ कर ही नहीं सकते इफ दे डोंट होल्ड द कैपेसिटी टू बी डीप इनफ इन देयर लाइफ. और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आपको समझे, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है आपको समझने की. दे लिव लाइफ एट सरफेस लेवल. एंड ठीक है, नॉट नेसेसरीली एवरीवन इन लाइफ हैज टू बी एज डीप एज यू आर. इट्स ओके. सेकेंड लेसन इज द फिलॉसफी ऑफ सो इज द मोस्ट फ्रीइंग थिंग एवर. इफ यू आर अ people pleaser, if you are an overthinker, जो एक overthinker होता है ना, you constantly live either in the past or in the future. You don't live in the present. You just don't. Practice when I'm very anxious, या जो मैंने इस साल practice करनी चालू करी है, आप realize नहीं करते हैं, but the distance between your shoulders and your ears, it decides how confident you are. Whenever मैं ऐसे करके बैठती हूँ, if I'm scrolling reels, if I'm studying, if I'm doing something, एंड मेरे शोल्डर्स ऐसे टेंस पोजिशन में है ना, योर शोल्डर्स टेंड टू होल्ड दैट स्ट्रेस. कॉन्शियसली टेल योर सेल्फ, रिलैक्स, काम डाउन, आई एम सेफ. आई कांट टेल यू कॉन्शियसली हाउ मेनी टाइम्स आई हैव डन दिस इन द पास्ट 2 months and it has changed my life. Relax. The third is never be a prisoner of your past. It was a lesson, not a life sentence. आप बंधे नहीं रह सकते अपने पास्ट से. You're behaving like you are on a life sentence with your past. It was just a lesson. If you hold on to it, अगर आप regret करते रहेंगे, what if I had done this? What if I had said this to this person? What if this person would have still been in my life? It's like आप एक life sentence को relive कर रहे हैं बार बार. And then again, you stop living in the moment. आपको उम्र कैद नहीं हुई है. आपको सिर्फ थोड़े टाइम की सजा थी. आपने उससे सीख लिया. उसके बाद आपको आगे भी बढ़ना है लाइफ में. The next is the cold water does not get warm if you jump late. जो आप सोच रहे हैं ना कि अगर मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी या अगर मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, उस चीज़ से जो आपको एक डर है ना, डर, वो जो एक फियर है कि नहीं शायद बाद में जाके ना मेरा फियर ख़त्म हो जाएगा, जब मुझे ठीक लगेगा, जब मेरा फियर चला जाएगा तब मैं करूँगा, तब मैं करूँगी. नहीं, अभी नहीं, बाद में करते. बाद में मेरे में क्या है, मेरे में और अक्ल आ जाएगी, एज, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो ठंडा पानी ही रहने वाला है. जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा उठाएंगे, आप उतने ही एंग्शियस होंगे जितने आप अभी हैं बिना वीडियो बनाए. वो चीज़ ईजी नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर आप बाद में उसको करेंगे तो. यू गेट इट. इट विल नॉट गेट ईजियर द मोर यू डिले इट. वो उतना ही टफ रहने वाला है. द नेक्स्ट इज इफ यू विश टू बी लव्ड, love. Very self-explanatory. I value your perspective, but I will make this decision on my own. Now I think this goes a lot for a parent-child dynamic. मतलब अगर आपके पेरेंट्स आपको
कोई अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, आपके कोई दोस्त उनका कोई पर्सपेक्टिव दे रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स एंड पेरेंटल पर्सपेक्टिव्स, यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट द फैक्ट दैट आप अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को ले सकते हो और आप अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हो, और वो दोनों चीज़ें अलग भी हो सकती हैं. They don't have to be the same. Take that decision the way you want to take that decision. You're not going against your parents, but you have to understand that you will have to live with that decision. Your parent will not have to live with that decision. The seventh one is talk a little nicer to yourself today. 24/7 we are angry with ourselves. हम गुस्से में रहते हैं, हम एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, फ्यूचर का सोचते रहते हैं. Have you ever just sat down and said to yourself, yeah, I like my vibe. Talk a little nicer to yourself today. The eighth one is, if you don't heal what hurt you, you will bleed on people who didn't cut you. You have to learn to heal yourself. और आजकल के ज़माने में हीलिंग को बहुत बड़ा वर्ड मान लिया है, बट हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब हील होते आए हैं अपने अपने वेज में. तो उतनी बड़ी चीज़ है नहीं हीलिंग. आपको लाइफ खुद ही हील होना सिखा देती है, बट मेक श्योर आप उस हीलिंग को ले रहे हैं अपने दिमाग के अंदर और एक्शंस के अंदर. The ninth one is, you will like places that make you realize how tiny you and your problems are. Because जब आप किसी दूसरे फ्रेंड की लाइफ में के बारे में सुनते हो ना, आपको रियलाइज होता है यार मेरी प्रॉब्लम तो इस इंसान की प्रॉब्लम के सामने कुछ नहीं है. इन्होंने तो मुझसे कितना ज़्यादा देखा है और ये फिर भी खुश हैं. यू विल लाइक दोज प्लेसेस या दोज पीपल दैट विल मेक यू रियलाइज कि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी सी हैं उनके प्रॉब्लम्स के सामने. द 10th वन इज, वंस यू रियलाइज दैट यू डोंट नीड अ स्पेशल ओकेजन टू बाय अ केक, द सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइफ बिगिंस. डू यू रिमेंबर द स्टिकर्स यू हैड सेव्ड एज अ किड? डू यू रिमेंबर? वेयर आर दो स्टिकर्स? आपने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए सेव किया था उनको. क्या वो कभी यूज हुए लाइफ में? नो. इन अ सिमिलर मैनर, wear that nice dress you want to today, wear that new top that you have brought today, get that cake for yourself today. 11th one is, if you wouldn't like it done to you, don't do it to others. Self explanatory. 12th one is, माँ बाप का डिसीजन शायद गलत हो सकता है, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती है. 13th one is, the most intelligent people listen to their intuition. They listen to their gut feeling. यार मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, सुनो उसको. Instinct over intellect. Always आपका gut feeling है ना, आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा. मुझे यहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, आपका इंस्टिंक्ट आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा. The 14th one is, closure is not something you receive from someone. It is something you find within yourself. You might think कि आपको किसी से बात करके क्लोजर मिलेगा या किसी के साथ कुछ सॉर्ट करके क्लोजर मिलेगा. Sometimes you just have to accept it कि ठीक है यार, यही मेरा क्लोजर है, ठीक है. The 15th one is, no matter how attractive a person's potential may be, you have to date their reality. आपके ब्रेन में there is a tendency to romanticize someone and put them on a pedestal and think, oh my god, if this person becomes my partner, ये लोग ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. What is the reality? Have they communicated it to you that they like you? If they haven't, then please आप उनकी रियलिटी को देखिए. तो वो जो घोड़े के ब्लाइंडर्स लगे होते हैं ना, जब आप किसी को डेट करना चाहते हो ना, तो वो ब्लाइंडर्स लगा के डेट किया कर. मेरा फोकस सिर्फ इसके एक्शंस है, इसके एक्शंस मुझे क्या बता रहे हैं. द रियलिटी इज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. 16th one is, the first time you choose yourself will feel like a mistake. One day it will just become a habit. The 17th one is, your feelings don't need to be understood by others to be valid. You have to realize that अगर आपकी फीलिंग्स कोई समझ नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फीलिंग्स इनवैलिड है, कि मेरा ऐसा फील करना ही गलत था. आपको अपने फीलिंग्स को खुद वैलिडेट करना आना चाहिए. ठीक है यार, मुझे ऐसा लगा, कोई बात नहीं. ठीक है यार, अगला मुझे नहीं समझा, कोई बात नहीं. क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ? हाँ. अगला नहीं समझता है यार मुझे, what can I do about it? The 18th one is, grow. Get rid of old ways. Self-explanatory. The 19th one is, character is how you treat those who can do nothing for you. It is your character that comes into picture जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है. ओल्ड पीपल,
people that are on the road, beggars, someone that can just do nothing for you, उनको कैसे ट्रीट करते हैं वो आपका कैरेक्टर बताता है. The 20th one is the universe only has 3 answers. Yes, not right now, I have something better for you. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने भगवान जी से बोला, भगवान जी मुझे अगले 3 महीनों में गाड़ी खरीदनी है. अगर वो चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, आपके साथ सिर्फ 3 चीज़ें होंगी. द फर्स्ट इज आपको वो चीज़ मिल जाएगी यूनिवर्स से. द सेकेंड इज यूनिवर्स आपको बोलेगा अभी थम जा बेटे, अभी के लिए थम जा थोड़ी देर. द थर्ड वन इज यूनिवर्स आपको बोलेगा मेरे पास तेरे लिए कुछ बेटर है. नो कभी भी नहीं आता है. Yes, not right now, I have something better for you. The 21st one is if you don't like something, take away its only power, your attention. जितना आप सोचेंगे उतना आप उस चीज़ को अपनी अटेंशन दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, और आपको तो वो चीज़ पसंद भी नहीं है. The 22nd one is what are you afraid of losing when nothing in the world actually belongs to you. You have to live life with the lens that अगर मैं कल को सब कुछ भी मेरे हाथ से छीन जाए ना, आई कैन हैंडल इट. तुम मेरे से सब कुछ छीन लो, कल ही छीन लो, आई कैन हैंडल इट. एंड द लास्ट वन इज ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू ट्रीट योर ओन चाइल्ड. जो आपका बच्चा है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे कल को अगर आपको बच्चा हो गया तो? आप उसको अनकंडीशनल लव दोगे, रिस्पेक्ट दोगे. आप कोशिश करोगे कि जो मिस्टेक्स आपने देखी है अपने लाइफ में लोगों को करते हुए, आप वो मिस्टेक्स अपने बच्चे के साथ रिपीट ना करो. आप उसको लाइफ में सब कुछ दो जो उसको चाहिए. आप उसको बेस्ट एजुकेशन दो, बेस्ट कपड़े खरीद के दो, उसका ध्यान रखो. गिव दैट सेम ट्रीटमेंट टू योर सेल्फ, बिकॉज आप भी किसी के बच्चे ही हो ना. भले ही आपको कुछ चीज़ें लाइफ में नहीं मिली, आपको कुछ तरीकों से कोई टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स आपके लाइफ में नहीं थे, बट आप भी तो बच्चे हो ना किसी के. तो आप अपने आप को भी वही ट्रीटमेंट दो जो आप अपने खुद के बच्चे को दोगे. This is my biggest takeaway, my biggest learning. I hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe. Please do that. I should not have said that. मैंने किसी वीडियो में बोला नहीं है, but I'm gonna become shameless now, so you're gonna have to hear it. But yeah, thanks for watching. If you stayed till the end, and I hope this works even for one person out of all of you that are watching. See you in the next video super soon. Bye.